Good morning, my dear respected students. And today again, I'm just begin with a chapter that is the data structures. And when we talk about the syllabus part in context of a data structure, it says that we are supposed to do stacks, queues, and their implementation and their applications as well. So today, this is very important, I think so, because question is always there in your board examination from stacks as well as a queues. There is one option whether it comes from a stack or whether it comes from a queue. So it's my humble request that you all are requested to kindly concentrate, and you are supposed to do this practically as well for better understanding. So my dear respected students, kindly concentrate here one by one. First of all, we just begin with a theoretical section here, and then only we just begin with a practical session as well for this stack. So first of all, that what we understand about a stack here, it says a stack is a linear or a sequence structure in which insertion and deletion can take place only at one end, that is a stack top. मेरे बच्चों कृपया करके इस बात को ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश कीजिएगा that when we talk about a stack here, they says that in case of a stack here, they do both operations, that is the insertion as well as deletion of elements, but both the operations will be performed only at one place, that is a stack top. मुझे लगता है कि यहां तक आप लोग मेरी बात समझ चुके हैं. Okay, now very important points we are supposed to remember before we are supposed to start the discussion on the topic that is a stack here. First of all, what it makes sense, it makes sense when we talk about a stack. The stack is based on the concept of LIFO. LIFO, the full form of LIFO is that is a last in first out. इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम सरल शब्दों में इसका व्याख्यान करें तो जो बाद में आ रहा है वो पहले जा रहा है. This is the concept of stacks, and I just want to elaborate this thing that queues, we can also begin with discussing the queues after holidays. And these are the concept which is also supposed to be followed in case of a printer. If we are supposed to give many commands to a printer, in that case they are supposed to, on the priority basis, they are supposed to do on the basis of LIFO and FIFO here. So this is a LIFO, that is last in first out. मेरे प्यारे बच्चों, next देखिएगा. It says insertion and deletion can be performed from stack top, which we have discussed right now as well, that both the operations can be performed on one location, and that location is to be considered as a stack top. After that, what we can do here, insertion of element, whenever we are supposed to insert an element within a stack, my dear respected students, that operation is to be called as a push. That is to be called as a push, whereas whenever we are supposed to delete any element from a stack, then it is to be called as a pop. Next thing what they are going to do, they say inspecting the value on stack top, as we have discussed that both the operation, that is insertion and deletion, can be take place from one place only. That is to be called as a stack top. And in that case, when we talk about a peek operation, they say without deleting the element which is there on the stack top, they just return the value, and this process is to be called as a peek, or we can also call it as a inspecting. This is also to be called as a inspecting. मेरे बेटा, मुझे लग रहा है, मुझे ये समझ आ रहा है कि आप सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बातों को. मैं एक बार रिव्यू लूंगा, नो इश्यूज विद दैट, बट काइंडली कंसंट्रेट ऑन दिस टॉपिक. 6 point, it says inserting element in already full stack is called as a overflow. जैसे अगर हम बकेट हो, एक बकेट और उसके अंदर वाटर की जितनी कैपेसिटी है
and after that, after filling that capacity, if we are going to put some more water there, so there is a overflow of water, वो बाहर गिरेगा, नीचे गिरेगा. In a similar case, in a stack, if we use that constraint, because right now we are not using this constraint, but if somebody is going to ask you that what do you understand by overflow in context of stacks, so you can say if we are using any limit for the stack for accepting the values, in that case, if we are supposed to enter more than that particular criteria, then this is to be called as an overflow. And the last last point, it says deleting element from an empty stack is called as a underflow. इसका अर्थ क्या हुआ कि मेरे पास उस stack के अंदर कोई value है ही नहीं, and what we are going to do, we just want to delete that value, and in that case this process is to be called as a underflow. अच्छा, अब मैं करके आ रहा हूं, मैं इसको हटा रहा हूं, एक मिनट देखना जरा, मैं बैक जा रहा हूं, ठीक है. अब मैं एक एक करके आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूं, जो मेरे साथी यहाँ अवेलेबल है, वन बाय वन पूछूंगा. कृपया करके ध्यान एकाग्रचित कीजिएगा और उत्तर देने की कृपालता कीजिएगा. मेरा बेटा संजना विरदी, मेरा पुत्र. संजना, अनम्यूट करना. Deletion and insertion in case of a stack is supposed to be performed at dash location. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. संजना जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूटेड हैं वैसे मुझे, पर आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही. ओके, नो इश्यूज विद दैट, देयर इज सम टेक्निकल इश्यू, आई थिंक सो. आर्ची धवन जी, can you please tell me that what we call that particular when we supposed to insert and deletion can be performed, and that can be performed at only one place. Archi Dhawan साहब. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ मेरा बच्चा, आर्ची अनम्यूट करिए. हाँ बोलिए. आर्ची ने भी अनम्यूट किया है और आर्ची की आवाज भी मेरे तक नहीं आ रही. अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो एक बार हैंड रेज करिए प्लीज. If my voice is audible, then can you please raise your hand? Yes, 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 my voice is audible. Okay, Khushi, I think so there is a technical issues at Archie's and Virdi Sahab side. So can you please tell me that what we call that particular, if possible? The stack top. Areva, that can be performed from stack top. Okay. Bhagat ji, when we are supposed to insert a value within a stack, that process is to be called as a push or pop. I am going to give you a hint as well. You are supposed to select only one option, whether the insertion of element is called as push or it is to be called as a pop. Very good. और अगर नहीं समझ आया या अगर आप लेट, हाँ जी बोलिए. वेरी गुड, वेरी गुड. भगत जी बोलिए. I was late. Okay, no issues with that. Thank you very much. No problem. Gurpreet, can you please tell me that what we call that thing? Nupur Mahavar ji, if my voice is audible. Nupur Mahavar, what we can call it as? Okay, we call this thing as a push operation, and when we are supposed to say that we are supposed to delete something from a stack, then what we can call this? When we are supposed to delete something. Very good. अब देखिए कौन बोलना चाहेगा हैंड रेज करके. जैसे मैंने बता दिया कि when we are supposed to insert something, that is to be called as a push. Now Bhagat Preet is raising their hand. Yes, Bhagat, please. Pop option. अरे वाह, क्या बात है. Then it is to be called as a pop. Okay, next question says when we are supposed to display the value which is there on the top of a stack, then it is to be called as a dash or dash. तो हैंड रेज करिए. हिंट दे दूं, हिंट दे दूं. हिंट का मतलब ये है कि इसका P से स्टार्ट होता है आंसर मेरे ख्याल से, और अगर एक और ऑप्शन जो मैंने पूछा है, इट बिगिंस फ्रॉम आई. P E
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अरे वाह खुशी एक्टिव है आज। खुशी, हाँ जी मेरा पुत्र बोलिए। Peek and inspecting. अरे वाह, दिस इज टू बी कॉल्ड एज अ पीक एंड इंस्पेक्ट। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो कमल जी सर मिस आउट कर गए। दैट स्टैक सपोर्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ लीफो। लीफो स्टैंड्स फॉर डैश। वेरी गुड मेरा बेटा, लीफो स्टैंड्स फॉर डैश। अरे वाह, फिर खुशी ने फिर, अच्छा क्या बात है, जय कौर भी आ गई। जय बोल मेरा पुत्र, लीफो स्टैंड्स फॉर Last in, first out. अरे वाह, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब जो बाद में आएगा वो पहले जाएगा। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। ओके, now I am just going to move forward, my dear respected students, kindly concentrate. I am just going to erase that particular which we have drawn here. Okay, and now we can just move forward towards the next concept here. Kindly concentrate. मेरा बेटा एक बार प्लीज देख लीजिए, this is a graphical representation of push and pop operation. So we consider this thing as a stack here, and when we talk about that this is a top, and in the initial stage we take it as a none, that we don't have any value and we don't have any address there. So what we can do, this is an empty stack. मेरे बेटा ध्यान से सुन लेना, when stack is empty and when stack is empty, then the value of top is to be considered as a none, and when the value of top is none, that this is very 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 easy to understand that the stack will be empty. मेरे बच्चों को मेरी बात समझ आ गई? Now what happened, we are just going to push that 10. मेरे बेटा एक जना मुझे बता दो, पुश का यार मुझे थोड़ा सा भूल गया कि पुश का मतलब इंसर्ट है कि डिलीशन है? वेरी गुड, Insert. इंसर्ट। अरे वाह क्या बात है, थैंक यू खुशी जी, थैंक यू भगत जी। ओके, so it says that now we are going to push the value that it is supposed to be inserted, and now this time the top is not to be considered as a none this time, because this is the first value, then it is to be considered as a 0. Again we are supposed to push that value, and याद रखिएगा this is last in first out. अब इसका मतलब क्या होगा, the value 20 is inserting at last, but if we are supposed to perform the deletion, that is a pop operation, in spite of deleting 10, we are supposed to delete 20 first as comparison to the 10 here. So this is the top. Top is to be considered as a 1 here. Now again if we insert a push, that is a 30 here. Now this time the value or the index of top is to be considered as a 2 here. So what we can do here next, we are supposed to pop the element. मेरे बेटा एक जना मुझे प्लीज बता दीजिए पॉप का मतलब क्या होगा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कौन बताएगा पॉप का मतलब क्या होगा? Delete. अरे वाह, मेरे को लग, अरे वाह, थैंक यू वेरी मच भगत, थैंक यू वेरी मच खुशी जी। नाउ व्हाट वी कैन डू हियर, the pop it says, because we have the value 30 at top location, so this is supposed to be deleted now, and now what happened, the top is to be considered as a 20, and in context of indexing it says 0 and 1. Now the value of top is to be considered as a 1. Now again we just perform a pop, that is a deletion operation. Again it supposed to be disappear from a stack, and now what happened, the new value for top is to be considered as a 0. So what we are going to do, we are just going to insert and push the values and 40 and 50. मेरे बच्चों को मुझे लगता है इस स्लाइड को देखने के बाद इतना समझ आ गया कि what is the concept of push, what is the concept of pop, and at initial location we are supposed to make top is equal to none. Why so? Because we don't have any value, and if it is empty, then we can call that this is to be considered as an empty string. If top is none, then it is an empty, and if we perform pop operation at that time, it says underflow, because we don't have any value and we are not supposed to delete the value. चलो जी, अब कृपया करके ध्यान को एकाग्रचित करना मेरे बच्चों,
मैं सबके साथ पार्टिसिपेशन करके चलूंगा, सबके साथ बातें करके चलूंगा, और आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि कृपया करके ध्यान को एकाग्रचित करें और मुझे चीजों के बारे में जानकारी देते जाएं। अच्छा, सबसे पहले मेरे बेटा, we are just going to make a program here, and what we are going to mention here, that is a definition. And first of all, we are just going to perform first operation, which is to be called as a push here. And what we can do, we just take one list here, that is a stack, and the value which is supposed to be inserted at that location. So what we can do here, we are just going to add that particular value which is there, and this is a list here, and this is the value which is to be inserted in a list. So what we can do, we just mention stack dot append, and what we are going to append, we are supposed to append that is a value which we accept that value. And what we are going to do, we are just going to consider top this time. That top is a length of stack and there is -1. मेरे बच्चा, सबसे पहले मैं, देखो मेरे को भागने का मन नहीं है, मुझे ये मन है कि आप समझे मेरी बात को और उसके बाद मुझे जानकारी दें, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है? सो काइंडली कंसंट्रेट ऑन दैट पर्टिकुलर, ये जो मैंने 3 लाइनें लिखी हैं इसके बारे में पहले बात करेंगे. Nupur, if my voice is audible, can you please unmute yourself if you don't mind? Very good, thank you. नुपुर, हाँ मेरा पुत्र, हाँ. तो स्टैक की टाइप क्या होगी? स्टैक बेटा हम टाइप लिस्ट कंसीडर कर रहे हैं मेरा पुत्र. ओके सर. That's why we take it as append मेरा बेटा. append तभी ले रहे हैं ना हम मेरा बच्चा. हाँ जी, ठीक है, थैंक यू. नुपुर है जरूर यहाँ पे, पर मैं नहीं मानूंगा कि आप हैं यहाँ पे. उसका कारण है कि frequently I just call your name but you are not responding. No issues with that. Maybe there is a technical issue. No problem with that. मैं गुरप्रीत के पास जाऊंगा. गुरप्रीत अनम्यूट करेगा पुत्र? गुरप्रीत जी. And I think so that there is a technical issue. I think so this thing, because many students are not supposed to respond, even they are just going to turn on their microphones but they are unable to speak. Archie, can you please unmute yourself if you don't mind? खुशी तेरे एंड पे तो कोई दिक्कत नहीं. अच्छा, ये देख अभी आर्ची ने किया है अनम्यूट. आर्ची, बट आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा मुझे. ओके, नो प्रॉब्लम. चलिए, खुशी एक बार थोड़ा सा इलैबोरेट कर दे ये वाला, ये 3 लाइंस जो मैंने लिखी हैं क्या है, ये थोड़ा सा गाइड कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं फटाफट. तो स्टैक एक लिस्ट है, तो उसके एंड में अगर हमने वैल्यू कोई डालनी है तो हम अपेंड फंक्शन यूज करेंगे, और टॉप में हमने उसकी लेंथ डाल दी. जैसे अभी मेरे पास फॉर एग्जांपल एक ही वैल्यू इंसर्टेड हुई है, तो लेंथ ऑफ स्टैक क्या रहेगा? 1 रहेगा ना मेरे ख्याल से. और 1 - 1 कितना हो जाएगा? दैट विल बी 0. इसका मतलब है टॉप के पास 0 चला गया. वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच खुशी जी. नाउ नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, दैट इज अ डेफ हियर, and this time we talk about that this is a pop here, and as you all know that this is the function what we talk about, that this is a function which is push is a function which is supposed to perform insertion. And when we talk about here the pop here, which is to be called as a deletion here, DELETION, this is to be considered as a deletion here. So what we can do here, we just mention अगर. अब जरा ध्यान से सुन लेना मेरी बात, मैं क्यों लिख रहा हूं. अगर स्टैक, जो मेरे पास स्टैक अवेलेबल है, STACK स्टैक, इफ स्टैक इज इक्वल टू एम्प्टी, अगर मेरी स्टैक जो है खाली है और उस केस में अगर मैं कुछ डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैंने अपने बच्चों के साथ पहले ही डिस्कस किया दैट दिस इज टू बी कॉल्ड एज अ अंडरफ्लो. मेरे बेटा, अंडरफ्लो का मतलब क्या हुआ? we don't have any value and we are supposed to delete that particular, and then only it is to be called as a underflow. else नहीं तो क्या करना,
we take one variable that is a v underscore deleted. Just हमने एक वेरिएबल का नाम ले लिया, value which is deleted, and what we can do, we just use stack dot, here it is a pop function. Pop means we are supposed to delete that element from a stack and supposed to be stored that particular into a v underscore deleted variable if length of stack is less than 0. अगर डिलीट करने के बाद अगर आपके स्टैक की लेंथ जो है जो लेस देन 0 हो जाएगी, तो आप उसको क्या कर लीजिएगा, आप उसको कंसीडर कर लीजिए नन, आप उसको नन में कन्वर्ट कर दीजिए। कहता सर कर लिया, कहता उसके बाद क्या करूं, कहता एल्स नहीं तो आप क्या करना, टॉप इज इक्वल टू लेंथ ऑफ अ स्टैक that is -1 and return that value that is v underscore deleted. अब मेरे बच्चों मेरी बात जरा ध्यान से सुन लेना, मैं रिपीट कर रहा हूं, I'm just repeating that particular thing. It says that if you want to call that function, this is a pop here and you pass the list here, what it makes sense, it says if the list is empty, अगर list खाली है तो सिंपल कर दो अंडरफ्लो, ओके नहीं तो एल्स में क्या करो, अगर ये खाली नहीं है, इसके अंदर वैल्यूज हैं, then what you can do, you just call that pop operation, pop function, delete that element which is there on the top hand side and store it into a v underscore deleted. उसके बाद अगर डिलीट करने के बाद if length of stack is less than 0, मतलब कि अगर a की वैल्यू थी वो 0 इंडेक्स पे थी और जब उसके बाद क्या वो भी डिलीट हो गई तो वो लेस देन 0 होगा, तो इन दैट केस वी कंसीडर इट एज टॉप इज इक्वल टू नन हियर। और अगर ऐसा सिचुएशन नहीं आती, ज्यादा एलिमेंट्स उसके अंदर होती हैं, तो व्हाट वी कैन डू, टॉप इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्टैक -1, जो भी लेंथ ऑफ स्टैक है which should be considered as -1 and display and return that value, that this is a value which is supposed to be deleted, that is a v underscore deleted. This is a value which is v underscore deleted here. Now what we can do here, this is a function which is to be called as a stack peak. मेरे बच्चों मेरी बात को जरा ध्यान से सुनने की कोशिश करना. What is the purpose of peak? To display the value on the top of stack without deleting. मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है, to display the value on the top of stack. इसको दिखाने के लिए कि टॉप में कौन सी वैल्यू अवेलेबल है. अच्छा अगर आप यहां से देखिए, मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर रहा हूं कुछ पोर्शन, मैंने सिंपल सी बात उसको पूछी, मैंने कहा यार ये देख ले कि अगर तो स्टैक इज इक्वल टू एम्प्टी हो गया तो अंडरफ्लो कर देना, नहीं तो क्या करना, नहीं तो वो कहता है ये करना, टॉप इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्टैक -1. मैंने क्या किया, मैंने यहीं से इसको कंटेंट को कॉपी किया, टॉप इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्टैक -1, और अब मैंने रिटर्न क्या किया, RETURN रिटर्न, क्योंकि मुझे टॉप वैल्यू, जो वैल्यू अवेलेबल है टॉप पे वो रिटर्न करना है, तो वो मुझे कहां मिलेगी मेरे बच्चों, दैट इज अवेलेबल इन अ वेरिएबल दैट इज अ टॉप, ये मुझे टॉप पे अवेलेबल मिल जाएगी. कहता ठीक है, कहता ओके हो गया सर. कहता अब क्या करोगे सर, कहता अब मैंने क्या किया, आई एम जस्ट गोइंग टू कॉल दैट अ डेफ एंड मेंशन इट एज अ डिस्प्ले without watching that whether this is first or second or third or fourth. entire list is supposed to be displayed. तो हमने यहाँ लिख दिया to display all the elements of stack. इसका पर्पस क्या है कि ये सारे के सारे एलिमेंट जो है स्टैक के, उनको रिटर्न करने के लिए काम आ रहा है. तो कहता फिर दोबारा यार वही बात सर, कहता अब क्या करूं, कहता यहीं से कॉपी पेस्ट कर लूं, कहता कर लो. कहता अब क्या किया यहाँ पे, कहता दोबारा पूछ लिया कि कहीं गलती से स्टैक एम्प्टी तो नहीं, अगर है तो अंडरफ्लो कर दे. कहता ठीक है. कहता अगर वो अंडरफ्लो नहीं है तो एक लूप चला लो फॉर आई इन रेंज. कहता ठीक है. कहता अब रेंज में क्या मेंशन करोगे, कहता सबसे पहले मैं मेंशन कर दूंगा लेंथ ऑफ स्टैक -1 and -1. ये मैंने क्यों लिखा, because I just begin from a top which is the top post position, and after that we are just going to display the content in a reverse order. ये मैंने लिख दिया REVERSE, reverse
ऑर्डर, ये मैंने डाटा दिखाने के लिए इन अ रिवर्स ऑर्डर, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि जो टॉप पे है वो पहले आएगा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद एंड फिर उसके बाद। तो मैंने क्या किया, व्हाट वी कैन डू, वी जस्ट मेंशन इट लाइक दिस, वी मेंशन प्रिंट दिस इज अ स्टैक हियर and we can just display that this is the value which is displayed on the stack। मेरे बच्चों को मेरी बात यहां तक समझ आ गई? एक बारी प्लीज जिसको मेरी बात यहां तक समझ आई है हैंड रेस करके बता दे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप हैंड रेस करके बताएंगे। वेरी गुड। अभी तक के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ भगत प्रीत का हैंड रेस नजर आ रहा है। भगत, एक और का भी आ गया, वेरी गुड, एक और का भी आ गया, वेरी गुड। बाकी लोग मतलब यहाँ हैं भी हैं? अरे हाँ हैं भाई, हैं। जयकौर का भी हैंड आ गया, आर्ची का भी आ गया। पर वाह क्या बात है, संजना विरदी जी भी, वेरी गुड। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध को भी समझ आया होगा। अनिरुद्ध आपका हैंड रेस नहीं आया, अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ लीजिए। सर एक्चुअली मैं क्लास में लेट आया, थोड़ा सा लेट हो गया, हाँ कोई दिक्कत नहीं, नो इश्यूज विद दैट, नो इश्यूज विद दैट। मेरा बेटा सिर्फ ये समझना है कि पॉप यहाँ पे अगर टॉप से स्टार्ट करे तो पुश इंसर्शन के लिए है, पॉप इज फॉर डिलीशन द एलिमेंट एंड स्पीक इज टू डिस्प्ले द टॉप मोस्ट value which is there in a stack, and after that display means displaying the entire content which is stored in that particular stack। तो अब मैंने क्या किया, प्लीज यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। अब ये मेन सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, मैंने यहाँ लिख दिया दिस इज टू बी कंसीडर एज अ मेन हियर। ये मेन वाला पार्ट में जो है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं मेन वाला पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, वी जस्ट मेंशन इट लाइक द स्टैक। मैंने नाम एलोकेट कर दिया स्टैक, और किसको एलोकेट किया, एक लिस्ट को। और मैंने इनिशियल स्टेज पे उसको मेंशन कर दिया, टॉप को कंसीडर कर लिया कि वो नन है, अभी तक उसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब मैंने एक इनफाइनाइट लूप चलाया, जो हम प्रोसेस बार बार रिपीट कर रहे हैं, जो हम सब लोगों को याद हो चुका है, हम अच्छा लगता है हम लोगों को इसको यूज करना। सो इट सेज व्हाइल ट्रू, जब ये ट्रू हो तो क्या करे, एक मेन्यू दिखा दे यार पहले, सबसे पहले। तो मैंने क्या किया, दिस इज अ मेन्यू हियर, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ओके इट्स ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट। वो थोड़ा सा मेरा डिवाइसेस फास्ट है इसलिए हो रहा है थोड़ा सा। मेन्यू इज इक्वल टू एंड वन, इट सेज सबसे पहले हमने क्या लिया था, सबसे पहले ऊपर हमने पुश कंसीडर किया, फिर दोबारा क्या किया, स्लैश एन टू, फिर हमने क्या किया, दैट इज अ पॉप हियर, स्लैश एन थ्री हियर, फिर थ्री में अब पॉप कर लिया। अब पॉप के बाद हमने क्या लिया था, मेरे को लगता है पीक लिया था शायद, है ना, पीक। फिर मैंने स्लैश एन लिया फोर। अब फोर के बाद, पीक के बाद मेरे को लगता है हम लोगों ने लिया डिस्प्ले। और ऐसा कर लेते हैं कि एक बार हम फिफ्थ वाली लोकेशन पे ना, फिफ्थ वाली लोकेशन पे एक एग्जिट लिख लेते हैं, वहां बीच में ब्रेक लगा देंगे, है ना, लास्ट में एक ब्रेक मेंशन कर देंगे दैट दिस इज अ ब्रेक। सो व्हाट वी कैन डू हियर, वी जस्ट क्लोज दिस एंड हिट द एंटर की है। अब मेरे बच्चों मैंने क्या किया, मैंने पूछा चॉइस इज इक्वल टू int of input here, very good, if I am right here, very good, and we just mention enter your choice। कहता कृपया करके अपनी जो आपकी जो भी चॉइस है, किसमें से चॉइस है, जो ये ऊपर मेन्यू आ रहा है, 1 पॉप, 1 पुश, 2 पॉप, 3 पीक, 4 डिस्प्ले एंड 5 इज एग्जिट, उसमें से कोई भी एंटर कर दो। कहता ठीक है। कहता अगर आ गया, अगर ch इज इक्वल टू 1 हो तो मैं किस फंक्शन को कॉल करूं, सबको पता है मेरे बच्चों को, पुश को। पर अगर मेरे बच्चों ने यहाँ गौर से देखा हो, पुश में वो मुझसे मांग क्या रहा है, स्टैक तो है मेरे पास, एक वैल्यू मांग रहा है, the value which is supposed to be inserted at that location। So what we can do here, we just ask for a value here, value is equal to। अब मैंने क्या किया, मुझे इंटीजर टाइप वैल्यू चाहिए, तो मैंने मेंशन कर दिया int input, enter the value to be added। मैंने सिर्फ इतना लिखा और मैंने मेंशन कर दिया कि एक वैल्यू आंसर कर दे यार जो तू ऐड करवाना चाहता है। और अब मैंने क्या किया, कॉल दैट पुश फंक्शन एंड मेंशन, दो चीजें मेंशन कर दी, वन इज अ स्टैक एंड सेकंड इज टू बी कॉल्ड एज अ वैल्यू। मेरे बच्चों, अब मेरे बच्चों को यहां से समझ आ गया होगा कि मैंने यूजर से वैल्यू मांगी है, और स्टैक जो हमने ऊपर एम्प्टी स्टैक जो है, एम्प्टी लिस्ट जिसको बोल सकते हैं, हमने वो डिक्लेयर की है, वो हमने पास कर दी, और जब उसके पास जाएगी तो वो उसको अपेंड कर देगा, ऐड कर देगा। ओके, सो नेक्स्ट इट सेज इफ अगर
ch इज इक्वल टू 2 हो तो मेरे बच्चों को पता है अब हमने सेकंड वाले फेस में कौन सी इस फंक्शन को कॉल किया है, दैट इज अ पॉप। पॉप का मतलब डिलीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर। सो डिलीशन के लिए मुझे यूजर से पूछने की जरूरत नहीं है कि तू डिलीट क्या करना चाहता है, बट अगर आप यहाँ देखें तो वो मुझे डिलीशन में यहां से एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, द वैल्यू विच वी आर सपोज टू डिस्प्ले इन आवर मेन सेक्शन। तो मैंने क्या किया, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू मेंशन वैल्यू इज इक्वल टू पॉप और मैंने यहां लिखा स्टैक। अब मैंने जैसे पॉप को कॉल किया और स्टैक को पास किया तो उसने चेक किया कि अगर उसके अंदर कुछ वैल्यू है तो उसने टॉप मोस्ट वैल्यू को डिलीट करके मुझे इस फंक्शन में रिटर्न किया एंड दैट स्टोर्ड इन अ वेरिएबल दैट इज अ वैल्यू। और मैं इसको डिस्प्ले कैसे करवाऊं, मैंने लिखा प्रिंट डिलीटेड एलिमेंट इज इक्वल टू, डिलीटेड एलिमेंट इज इक्वल टू किस वेरिएबल के स्टोर है, दैट इज अ वैल्यू। मैंने वैल्यू के अंदर लिख दिया। अब अगली काम, अच्छा अगर हम यहाँ पे इफ लिख रहे हैं बार बार तो अगर हम चाहे तो यहाँ एल इफ भी लिख सकते हैं, नो इश्यूज विद दैट, नो प्रॉब्लम विद दैट। So what we can do here, again we mention it as a elif, okay? So what we can do here in ch is equal to 3, अगर मैं यहाँ ch is equal to 3 के केस में देखूं, पुश हो गया, पॉप हो गया, पीक, ओके। तो पीक के केस में मेरा पुत्र हमने क्या किया, अगेन इफ वी टॉक अबाउट पीक, मेरे को लगता है कि वो कोई वैल्यू रिटर्न करता है, यस दे आर सपोज टू रिटर्न दैट वैल्यू। सो मैंने क्या किया, मैंने यहीं से कर लिया इसको कॉपी। आप कहेंगे सर ये क्या कर रहे हैं, मैंने कहा बस 2 मिनट रुक जाओ, अभी कर लेते हैं क्या है। मैंने यहाँ पे पॉप की जगह लिख दिया दैट इज टू बी कॉल्ड एज अ पीक, द नेम ऑफ द फंक्शन। एंड यहाँ पे मैंने क्या लिखा, डिलीटेड एलिमेंट की जगह तो मैंने लिखा एलिमेंट एट टॉप मोस्ट लोकेशन, यहाँ मैंने लिख दिया एलिमेंट, stop, no problem. It says that the element, yes, very good, element on the topmost position, and position में क्या किया, that it is to be called as a value here. So अब मेरा ये भी काम हो गया। अब मैंने क्या किया, अब मेरा चौथा पोर्शन आया L if again ch is equal to 4। कहता अगर वो 4 हो जाए तो कहता आप क्या कॉल करो। अब मुझे याद है यार कि हमने डिस्प्ले को कॉल करना है, डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर मैंने क्या पास किया, STACK स्टैक, और वो मैंने लगता है कि ऊपर ये देखिए लाइन आ रही है जो रिवर्स ऑर्डर में हमें सारी का सारा कंटेंट जो है स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देगा। प्रिंट इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि मैंने प्रिंट यहाँ पे मेंशन किया है, वो यहाँ से मुझे डिस्प्ले कर देगा। अब नेक्स्ट क्या हुआ, जो आपने फिफ्थ देखा, कंवलजीत सर ने फिफ्थ में मेंशन किया हुआ L8 और कंवलजीत सर ने लिखा CH इज इक्वल टू 5। तो मैंने बोला एग्जिट के लिए, तो मैंने सिंपल लिख दिया दैट इज टू बी कॉल्ड एज अ ब्रेक। और अगर इनमें से कोई भी अगर ऑप्शन सेलेक्टेड ना हो, कोई भी हो जाए, 10 हो जाए, 15 हो जाए, 7 हो जाए, 6 हो जाए, तो इन दैट केस वी जस्ट मेंशन हियर वन statement, or there is one option that we can say that we can mention it like this: invalid option selected, which says invalid option selected। मेरे बच्चों आपकी आज्ञा से, अगर आप मुझे आज्ञा दे, मैंने F5 प्रेस किया, एंटर हिट किया, and what we can do, we just mention it like that, stack here, and stack is a 4, and we are just going to hit that particular indentation level। वो कहता है कि आपका कहीं पे मैच नहीं कर रहा, कृपया करके ध्यान को एकाग्रचित करने की कृपालता करें। ये इफ ठीक है मेरा, ये इफ ठीक है, यस दिस इज अ पॉप, ये ठीक है, दिस इज अ एल्स हियर, इट सेज वी, इट सेज डिलीटेड, इट सेज स्टॉप, इट सेज एल्स, इट सेज ओके। कहाँ पे लग रहा है इंडेंटेशन, मुझे तो ठीक लग रही है। अच्छा पीक के केस में बोल रहा है क्या, नो, स्टैक डिस्प्ले, डिस्प्ले की बात यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया, कहता ओके है जी। उसके बाद मैंने प्रिंट कर दिया अंडरफ्लो, उसके बाद मैंने एल्स कर दिया, ठीक है, एल्स भी ठीक है भाई। तो यहाँ पे आया फॉर रिवर्स ऑर्डर, बेटा किसी को लग रहा है इंडेंटेशन, खुशी एक बार चेक कर। इंडेंटेशन तो ठीक है।
अब ये यहाँ पे आ गया इंडेंटेशन, मैंने एक एक स्टेप आगे किया है उसको, हाँ कोई बात नहीं, देख लेते हैं। अरे वाह, भागेगा भागेगा भागेगा, अब भागेगा। एक एक वो स्टेप था, मेरे ख्याल से वो मेरे से ही मिस्टेक हुई होगी, एक एक स्टेप आगे पीछे मेरे से गलती से हो गया। अच्छा आप देखिएगा जरा प्लीज ध्यान से, इट सेज पुश हियर, सो मैंने पहले कर दिया 12। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनते जाना, मेरी रिक्वेस्ट है, अब चेक करिएगा कि एलिमेंट्स किस तरीके से दिखा रहा है ये। अब मैंने फिर दोबारा किया 1, मतलब इसका मतलब मैं ऐड करना चाहता हूँ, फिर कर दिया, फिर मैंने किया ऐड, अब मैंने फिर कर दिया, फिर मैंने किया ऐड, फिर मैंने किया पुश। मतलब ऐड और पुश दोनों बार जब मैंने बोले दिस इज टू बी इंसर्टिंग, दैट वी आर सपोज टू इंसर्टिंग। नाउ वी आर जस्ट सपोज टू यूज अ choice number 4 here, which says that we are supposed to display the content which is there in that particular stack. अब जरा ध्यान से देख लीजिए, this is a 12, this is 23, this is 45, that is 67 and this is 89। अब मेरे बेटा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, when we just perform an operation that is 2 says that I am supposed to delete that particular, मेरे बेटा ये देखिए 89, अब मैंने किया 4, मैंने जस्ट डिस्प्ले किया, वो कहता है 67 है टॉप पे। अब मैंने दोबारा किया ऑप्शन, फिर 67, फिर मैंने किया 45, फिर मैंने किया 23। अच्छा आप देख लो एक बार स्टैक के अंदर है क्या, सिर्फ 12 रह गया। अच्छा मैं दोबारा एक बार पॉप कर रहा हूं, मैंने पॉप किया, वो अब क्या हुआ होगा, जब उसने 0 था, जब आप ध्यान से देखिएगा मेरी बात को और सुनने की कृपालता कीजिएगा, वो कहता है कि जब यहाँ पे अब आपने पॉप किया और अब आपने दोबारा पॉप किया और इस केस में आप लेंथ ऑफ स्टैक क्या है, लेस देन 0 हो गई, तो अब टॉप की वैल्यू नन हो जानी चाहिए। कहता ठीक है, और अगर वो नन हो गई तो वो आपको अंडरफ्लो रिफ्लेक्ट करेगा। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने चॉइस इज इक्वल टू 2 किया, एंटर हिट किया, उसने देखो सबसे पहले क्या किया, अंडरफ्लो, और उसके बाद उसने क्या कर दिया, डिलीटेड एलिमेंट इज नन। क्यों किया, बिकॉज वी हैव मेंशन्ड दैट टॉप इज इक्वल टू नन हियर। और क्यों ये अंडरफ्लो क्यों आया, because this there is no value inside that particular and this is to be considered as a underflow। इसका मतलब वैल्यू नहीं है और मैं डिलीट करना चाहता हूं, it is to be called as a underflow। now again we are supposed to hit enter the values, मैं दोबारा एंटर कर रहा हूं, कर दिया, अब मैंने 4 डिस्प्ले किया, वैल्यूज आ गई। अब पीक वाला चेक कर लो, 3 वाली ऑप्शन क्लिक की, ये देखिए पीक 34 आ गया। अब मैंने फिर दोबारा 56 एंटर कर दिया, सारी वैल्यूज दिखा दी। अब मेरा बच्चा, अब मैंने फिर पीक किया, वो कहता है दैट इज अ 56। और लास्ट में अगर आप एग्जिट करना चाहें 5 हिट कर दीजिए एंड दे आर जस्ट कम आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। मेरे बच्चों को जिनको मेरी बात समझ आ गई हो, कृपया करके हैंड रेज करने की कृपालता करें।